And now, the moment we have all been waiting for. It's the time to hear from our esteemed speaker, Dr. Sanjeev Chopra, sir, a name synonymous with excellence in public service, serving the nation for more than 37 years. He is a 1990 batch IS officer of Odisha cadre. So, sir, truly we are truly privileged to have you here with us today. Join us as we journey through the story of India's governance and statecraft led by the words of Dr. Sanjeev Chopra, sir. Sir, please welcome. The stage is yours now. Chairman Shri S.P. Singh, Shri Randhir Singh Bisht, the director, and my very, very dear younger sister Dipakshi Joshi, because she comes from a BSF family and that gives us a very nice bond, and I'm so glad, so privileged. Now I know the real reason for the success of this college. It is not Mr. Singh, it is not Mr. Bisht, it's because of her. And because of BSF. And because of you. So I see some of those young debaters here who had won the prize, and in fact after the first interaction itself, I had volunteered, I said I'll come and talk to all of you. So what we'll do is we'll do a mixture of Hindi and English because I think that will be more comfortable. तो जब दीपाक्षी आपसे बात कर रही थी तो उन्होंने कुछ शब्द यूज़ किए, and among those there were the word of history had come in. History was there, grassroots democracy was there, freedom was there, gender equality, forest ecology, environment, so many things, so many terms were being used. What happens is कि जब हम किसी भी term को use करते हैं तो उसके पीछे हमें देखना पड़ता है कि वो शब्द जो है वो शब्द क्यों बनता है. Why does that, and there are many ways of looking at things. There are reality की कई forms होते हैं. When you are very young, I mean you are still very young, but for a little child, when you have children at home, for instance, who are 5-10 years up to the age of 10, you have the belief कि जब आप बटन दबाएंगे तो लाइट आ जाएगी. That's the impression which they will have. But as you grow up, you realize that light इसलिए नहीं आ रही कि आपने बटन दबाया. Then you will realize that light इसलिए आ रही है क्योंकि पीछे ग्रिड में बिजली है. That is the second level of reality. So it is not that the first level of reality is wrong. उसकी reality है. एक 5 साल के बच्चे की 10 साल की उम्र तक के बच्चे की वो reality बिल्कुल मुनासिब है, बिल्कुल ठीक है, और उससे ज़्यादा reality हो ही नहीं सकती. He will have the impression कि बटन दबाया लाइट आ गई. जब तक हम आपकी एज में आते हैं, when you are in college, you realize कि लाइट इसलिए नहीं आती क्योंकि आपने बटन दबाया है, लाइट इसलिए आती है क्योंकि पीछे ग्रिड में लाइट है. उससे कुछ साल बाद आप ये रियलाइज़ करते हैं कि ग्रिड में लाइट क्यों है. क्या ये लाइट टेहरी से आ रही है? क्या ये लाइट किसी थर्मल प्लांट से आ रही है? क्या ये लाइट किसी न्यूक्लियर स्टेशन से आ रही है? एंड देन वी रियलाइज दैट वी डोंट नो एक्चुअली ये लाइट कहाँ से आ रही है, बिकॉज गिवन द बंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट हैपन्स, यू एक्चुअली डोंट नो कि इस समय ये जो लाइट है, whether this is the light of Tehri Dam or this is the light of the NTPC thermal project in some place, or it is coming from the Nora atomic energy plant, we do not know. We know that there is a light. And when we go even deeper into that, then we realize that there is a greater unity. Tehri में पानी है तभी तो बिजली आ रही है. पानी क्यों है? पानी is there because there is the glacial melt, because there is monsoon, because there is evaporation, और ये पूरा एक cosmic reality है जिसकी वजह से कहीं बिजली बनती है, कहीं वो बिजली जाती है, कहीं वो बिजली आती है. और इस बिजली की कितनी महिमा है. You can use this for air conditioning, you can use this for heating, you can use this for making a cup of tea or coffee, you can use this for making a milkshake. So the variety and the diversity that you get from the same element, from the same object is diverse. And the moment you cross the first barrier, you realize the unity in which we all are. एक शब्द है चिपको. तो there is one meaning of चिपको. ये चिपक लिया तो चिपको हो गया. There is a second meaning of चिपको. That चिपको refers to an environmental movement. Third would be that चिपको शायद गौरा देवी के हाथों से शुरू हुई. फोर्थ ये भी हो सकता है कि चिपको शायद गौरा देवी नहीं स्टार्ट नहीं की थी, उससे पहले एक बिश्नोई ट्रेडिशन थी
जहाँ पे जोधपुर के राजा ने जब आदेश दिया था कि पेड़ों को काट के उनके लिए महल बना दिया जाए. So these women came up and 368 of these women died. You know, not all women, but men and women died. And that led to Jodhpur giving a decree that trees shall not be cut in Jodhpur. Kejuri tree से कहानी शुरू हुई. तो जब हम हिस्ट्री को समझते हैं, जब हम इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं, तो इतिहास की कई लेयर्स हैं, कई परतें हैं इतिहास की. और जब हम इतिहास को जानेंगे, जब हम इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे, तो हम उसमें कुछ अपना भी पाते हैं. We get to know a little bit about ourselves when we start reveling or unraveling deeper into the histories and into the mysteries of life or various things. So I thought there are again two ways of looking at history or any subject. एक तो है कि हम larger picture को ले लें और उसके बाद में उसके छोटे छोटे elements को study करें, या ये है कि हम एक छोटे element को study करके उसके बाद में एक पूरा logic उसके साथ create करें. So we can either go from the whole to the part, or we can go from the part to the whole, right? So these are two ways in which we can look at things. So one way of looking at history would be to say कि देखिए भारत है, और भारत जो है वो आप सब लॉ के स्टूडेंट्स हैं. तो वेरी फर्स्ट आर्टिकल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 शेड्यूल 1 डिस्क्राइब द टेरिटरी ऑफ इंडिया. सो दैट इज़ वन वे ऑफ लुकिंग एट हाउ इंडिया इज़. और ये भी बड़ा क्लियर है, आप सबको बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है दैट इंडिया, दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, विच मीन्स कि इंडिया है. और इसका मतलब है कि जब तक संविधान चेंज नहीं होता, वी कैनॉट हैव अ यूनिलैटरल प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज the very logic of our constitution says that India is a union of states, which means that state elections are as important as union elections. Or yes, there are some union territories, but union territories are not really the formative elements of the country. और in fact अगर आप और deeply जाएंगे तो आप देखेंगे आर्टिकल 82 में, जिसमें डिफाइन किया हुआ है कि कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी देश में. तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि 550 कॉन्स्टिट्यूंसीज हो सकती हैं मैक्सिमम. इस समय 543 हैं, और इनमें से 530 जो हैं वो स्टेट से आएंगी और सिर्फ 20 जो हैं वो यूनियन टेरिटरी से आ सकती हैं. इन अदर वर्ड्स, द स्टेट्स आर द डिफाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ इंडिया. एंड येट हैविंग सेड दैट द स्टेट्स आर द डिफाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ इंडिया, अनलाइक इन आर्टिकल 1 शेड्यूल 1 which defines the territory of India, there is no article which defines the territory of a state. There is no article in our constitution which defines the territory of a state, whereas the constitution very clearly tells us what is the territory of India. So that is the one very important difference between what the territory of a country is and what the territory of a state is. And that is why when it comes to the external territories of the country, we use the word border. That is why Dipakshi used the word border security force, because we have to protect our borders. And we have a very long border, 15,000 square kilometers of border, 7,000 kilometers of coastline. So there is, as you are all aware, the border with Pakistan, the border with Nepal, the border with Bangladesh, the border with Bhutan, and parts of Myanmar. So these are all the borders of our country. But within the country, there are boundaries. A boundary and a border are two different concepts. और इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा ज़रूरी है. बाउंड्री जो होती है, इंटरनल बाउंड्री, वो देश खुद बनाता है, खुद तय करते हैं. मतलब हम खुद तय करते हैं कि कल तक जो उत्तर प्रदेश था, मतलब मिस्टर सिंह जो आपके चेयरमैन हैं, वो कभी यूपी में रहते थे और अब वो उत्तराखंड में रह रहे हैं. तो इट इज़ नॉट दैट एनीथिंग इज चेंज, बट रुद्रपुर कुड बी शिफ्टेड फ्रॉम दिस टू दैट. So that is that is the work which the sovereign democratic Republic of India can do. But changing the borders of a nation will require a war, or will require an international treaty, will require an international agreement. And although boundaries को लेके भी बहुत झगड़े होते हैं, लेकिन borders को लेके तो बहुत ही ज़्यादा झगड़े होते हैं. So we have to understand the difference between these three things. और इसके साथ में एक और चीज़ आपको conceptually clear करना चाहता हूँ, and then we'll come to उत्तराखंड. वो है फ्रंटियर. फ्रंटियर वो एरिया है जो बॉर्डर्स के आसपास होता है. आई मीन द एरिया विच इज़ वेरी क्लोज टू द बॉर्डर, दैट इज़ द फ्रंटियर, बिकॉज दैट इज़ द फ्रंट ऑफ द कंट्री, राइट. सो यू हैव अ फ्रंटियर एरिया. और आगे क्या था, मतलब अब तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हो गई है, एंड एवरी बिट ऑफ द कंट्री इज़ पॉपुलेटेड, एंड येट यू विल नोटिस दैट द पॉपुलेशन डेंसिटी इन से अरुणाचल प्रदेश और इन असम और इन
Meghalaya or in the Nagaland areas is much less than the population density in say UP or Bihar, which are the densest populated areas in the country. Even here in Uttarakhand, you will find that population density is moving in 3 districts. और जो हमारे पहाड़ के जिले हैं उनमें पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम है. लाइक इफ यू गो टू पिथौरागढ़, इफ यू गो टू उत्तरकाशी, अब टूरिस्ट सीज़न को छोड़ दीजिए, जब ये टूरिस्ट सीज़न नहीं होता तो उस समय जो पॉपुलेशन डेंसिटी इन जगह की बहुत कम होती है. नाउ व्हाट हैपेंड वाज दैट व्हेन इंडिया वाज मेड, हमारे पास पीपीपी की प्रोविज़न है ना. हाँ, अच्छा, ओके. तो जब भारत बना, पहला नक्शा दिखाइए. जब ये पहला नक्शा बनता है भारत का, तो इसमें देखिए यू फाइंड 2 कलर्स, 2 रंग हैं इसमें. एक रंग तो वो है जिसमें अंग्रेज़ों की अपनी डायरेक्टली रूल्ड रियासतें थी, जैसे उत्तर प्रदेश, जिसका तब नाम था यूनाइटेड प्रोविंसेस. देन देयर वाज पंजाब, बंगाल, असम, बिहार. दीज वर एरियाज विच वर बीइंग रूल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली. And then you have a very large area. In fact, 48% of the area was under princely states. For example, टेरी गढ़वाल. देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मज़ेदार चीज़ आप देखेंगे कि उत्तराखंड में you have the Kumaon region and the Garhwal region. Now, Kumaon was totally under the British regime. तो यहाँ पे हमारे बड़े क्लासिक कमिश्नर्स रहे हैं जो 25-25, 30-30 साल तक यहाँ कमिश्नर रहे हैं, रामसे, मैकडोनल्ड वगैरह. लेकिन जो टेरी स्टेट थी, दैट वाज अ प्रिंसली स्टेट. वो टेरी राज्य था. दैट इज़ दे हैड अ सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट. मतलब इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ तक रेवेन्यू है, माइनर जुडिशियल मैटर्स हैं, लैंड मैटर्स हैं, रिलीजियस मैटर्स हैं, इक्लेसिस्टियल अफेयर्स हैं, दैट द राजा वॉज फेयरली कॉम्पिटेंट टू डू. बट द राजा डिड नॉट हैव हिज करेंसी, ही डिड नॉट हैव हिज आर्मी. आर्मी होती थी इनकी वो नोशनल आर्मी, मतलब वो सल्यूट वगैरह देने के लिए, लेफ्ट राइट, ऑल दैट, दैट symbolic aspect, but no real army. And that army was also trained by so there were 2 kinds of areas in our country. There were 9 provinces of India and 562 princely states. I have used the word province here and not a state, because province jo thi, that was the creation of the British Raj or the British Dominion. और जो ब्रिटिश डोमिनियन ने जो अपनी स्टेट्स बनाई थी, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बनाई थी. उनके लिए हमारी अपनी डेमोक्रेसी या हमारी अपनी डेवलपमेंट वाज नॉट देयर टॉप प्रायोरिटी. उनकी प्रायोरिटी थी, अंग्रेज़ों की जो प्रायोरिटीज़ थी, दे वर टू मेंटेन एंड एक्सपैंड द फ्रंटियर्स ऑफ आवर कंट्री, नंबर 1. नंबर 2, टू इंश्योर दैट इट वाज ऑलवेज रेवेन्यू सरप्लस, कि नुकसान ना हो, बिकॉज दे आर नॉट रूलिंग फॉर योर सेक, दे आर रूलिंग फॉर देयर सेक. और तीसरा ये कि जो गुड्स वहाँ से आएंगे यूरोप से, उन पे ड्यूटी कम हो, और जो रॉ मटेरियल यहाँ से जाए उस पर, मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ताकि कम हो, ताकि कॉटन यहाँ से जाए, कपड़ा वहाँ से आए, राइट. यहाँ एल्यूमिनियम यहाँ से जाए और स्टील वहाँ से बन गया. तो दैट वाज व्हाट दे वांटेड टू डू. यहाँ से जो एक्सपोर्ट्स होते थे वो टी, कॉटन, जूट, ओपियम, sugar, I mean all those labor intensive things, because they felt that India is good for labor only. So that was the outlook at that time. तो जब प्रोविंसेस थी, तो प्रोविंसेस में भाषा को लेके या एथनिसिटी को लेके या आपकी फीलिंग्स को लेके ऐसी को उनको कोई अंग्रेज़ शासक को ऐसी कोई उसमें ना दिलचस्पी थी, ना इंटरेस्ट था, and it was not serving their purpose. Now let me make one thing very clear. राजा जो भी बोले, and when I say Raja, I mean the ruler. Whatever the ruler might say, the ruler wants to rule, right? So whether it is regime A or regime B or regime C, every ruler wants to exercise his authority and believe कि वो सब समय राज करता रहेगा. वो नहीं हो सकता, लेकिन ये belief है, ये एक दास्तान है, ये कहानी है, in which they believe that this will always happen. So when these provinces were there, and these were multilingual provinces, जैसे अगर आप मद्रास का एग्जाम्पल लेंगे, मद्रास स्टेट का, तो मद्रास स्टेट में तमिल स्पीकिंग थे, तेलुगु स्पीकिंग थे, उड़िया स्पीकिंग थे, मराठा स्पीकिंग थे. इस तरह हैदराबाद स्टेट. सो इट वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिटी. महात्मा गांधी when he comes back to India from South Africa in 1950, he realizes कि देश की आज़ादी के लिए हमें अपनी भाषाओं को सुदृढ़ करना होगा और हमें एक नेशनल फीलिंग, एक कॉमन फीलिंग लानी पड़ेगी. देखिए, ऑल सेड एंड डन, द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू उत्तराखंड, अभी उत्तराखंड बनने के बाद थोड़ा सा गढ़वाल कुमाऊं में थोड़ी सी जो रोष रंजिश है, थोड़ी सी शायद कम हुई हो, लेकिन अभी भी है, ये है.
मतलब जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करने से किसी का फ़ायदा नहीं होता. The fact is that there is a relative deprivation. I mean, there is a feeling of. आज सुबह ही बात हो रही थी कि जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है तो भेज साहब बता रहे थे कि कुमाऊं में होगा, गढ़वाल में नहीं हुआ. कुमाऊं में इसलिए हुआ. And if you go to Garhwal, they'll tell you the same stories about Kumaon. So these things are always there, and there is nothing wrong with it. There is nothing wrong with it. मैं बंगाल कार्डर में था. बंगाल में अभी भी जो ये 3 फुटबॉल क्लब्स हैं बंगाल के, ईस्ट बंगाल, मोहम्मदन स्पोर्टिंग एंड मोहन बगान, इनको लेके इतना झगड़ा होता है. चलो मोहम्मदन स्पोर्टिंग वन कैन अंडरस्टैंड दैट ऑल मुस्लिम्स विल सपोर्ट इट, बट विद इन ईस्ट बंगाल एंड मोहन बगान इज द क्लब ऑफ दोज ओरिजिनल, आई मीन दो जिनको घोटी बोलते हैं, मतलब जो पहले से जो बंगाल में रह रहे थे. और ईस्ट बंगाल आर दोज हु कम फ्रॉम विच इज़ नाउ बांग्लादेश. देयर इज वायलेंस ऑन द स्ट्रीट्स. मतलब जब मोहन बगान की टीम जीतती है तो क्या सेलिब्रेशन करते हैं, और जब वो मोहन बगान हारता है तो लोग रोते हैं. इसी तरह ईस्ट बंगाल, सो दैट फीलिंग इज देयर एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस फीलिंग. अपनी आइडेंटिटी को, इशू सिर्फ ये आइडेंटिटी का है कि एक सिंगल आइडेंटिटी होना ज़रूरी नहीं है. हमारे पास मल्टीपल आइडेंटिटीज़ हो सकती हैं, और मल्टीपल आइडेंटिटीज़ का आपस में रिस्पेक्ट होना बहुत अच्छी बात है, बहुत स्वाभाविक बात है. और जो देश इन मल्टीपल आइडेंटिटीज़ को एक्सेप्ट करते हैं वही देश आगे चल के तरक्की करते हैं. जैसे आई कैन नॉट डिनाई माई पंजाबी आइडेंटिटी. आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पंजाबी. आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पंजाबी हिंदू विद अ सिख ट्रेडिशन. आई एम वेरी हैप्पी टू हैव सेटल्ड इन उत्तराखंड एंड दैट मेक्स मी अ वेरी गुड इंडियन. And I have served in Bengal for a long time, that also because my pension comes from Bengal, and I have worked in Darjeeling, and all of us from the BSF families, we treat the whole country as our own. So having multiple identities is not a problem. In fact, the problem is when you deny multiple identities. Multiple identity को deny करना उचित नहीं है, ना उचित है और ना होना चाहिए. और हमारा देश तो इस बात का एक स्टैंडिंग एग्जाम्पल है. You see, you could be a Gujarati Muslim and be a very proud Indian. You could be a Parsi in Maharashtra and be a very proud Indian, or you could be a Christian in Kerala and be a very proud Indian. Where is the problem? Where is the contradiction? Is if somebody says कि सिर्फ मैं ही हिंदुस्तान, that only I am Indian and the others are not. We cannot deny anybody the right, the opportunity and the privilege of being called a Bharatiya, and that is a very important aspect. देखिए यही चीज़ है जो बार बार Pakistan and the ISI are trying to do exactly this. What they are trying to do is they are trying to divide this country on linguistic, ethnic, religious grounds. And as Bharat, we have to resist all that because we are a great country. We owe our civilizational strength to the concept of Bharat. And if you go back into history, you will realize कि जो पहले ही जो श्लोक है भागवत गीता में, उसमें वो पूछ रहे हैं, अपना धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से, बोल रहे हैं बताओ भाई संजय, ये क्या फौजें हैं, कहाँ फौजें हैं, क्या फॉर्मेशन है. एंड देन ही गोज ऑन टू डिस्क्राइब कि ये उनके शंख हैं, ये शंख बज रहे हैं. बट इफ़ यू गो फर्दर इनटू द भागवत पुराण, यू विल फाइंड दैट देयर वर 11 आर्मीज ऑन द कौरवा साइड, 7 आर्मीज ऑन द पांडवा साइड, और एक आर्मी की 2.5 लाख की उनकी स्ट्रेंथ थी. और पूरे देश के जो राजा थे, गंधार से लेके नीचे तक, मलया किंगडम से, सब के सब इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे. वो सब अपने आप में छोटे छोटे राज्य थे. अगर आप एक अच्छे, इफ़ यू आर अ गुड कौशल राज, अगर आप कौशल के हैं या आप कई राज से हैं या आप चोला किंगडम से हैं, दैट डज नॉट मीन दैट यू आर लेस ऑफ एन इंडियन. यू आर इक्वली एन इंडियन, यू आर इक्वली अ पार्ट ऑफ भारत, एंड येट यू आर फाइटिंग फॉर डिफरेंट अ डिफरेंट इशू. दैट्स परफेक्टली फाइन. क्योंकि ज़िंदगी में थोड़ा बहुत झगड़ा, थोड़ा बहुत थोड़ी बहुत डिफरेंसेस होती रहेंगी. अगर डिफरेंसेस नहीं होंगी तो लॉ कॉलेज बंद हो जाएंगे. You should all be happy that there are differences and conflicts. Otherwise, all of you will be unemployed, and that will be a very bad thing. अगर कोई लोग झगड़ा ही नहीं करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? काला कोट ऐसे ही पहना हुआ आपने, तो काले कोट के लिए ज़रूरी है कि लोग आपस में झगड़ते रहें. Anyway, I think I keep getting into a lot of these stories. Anyway, so this is the first map of India that you see. 11 रियासतें थी भारत के पास, 2 पाकिस्तान में चली गई, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. सिंध के पाकिस्तान में जाने के बाद भी सिंध हमारे देश की नेशनल एंथम में है, राइट. दैट्स व्हाई वी से वेरी प्राउडली पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग. अब सवाल आता है कि सिंध कहाँ है? वेयर इज सिंध? नाउ दिस इज वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ अ नेशन, देयर इज द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ अ टेरिटरी, एंड देन देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ टेरिटरी, अ लैंग्वेज एंड एन एथनिसिटी. पंजाब एंड सिंध बैंक
4 स्टेट्स में सिंधी एकेडमी है, उत्तराखंड इंक्लूडेड। जब चेटी चांद की जब एनिवर्सरी होती है तो यहाँ छुट्टी करते हैं, वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे। Sindhi is there on the national, it's one of the national languages of this country. Sindhi is there on your currency note. In any case, सबसे ज़्यादा पैसे तो सिंधियों के पास ही हैं. So Sindh is very much a part of India, even though the physical territory of Sindh may not be in India. So that whole concept that you need a physical territory to have a sense of belonging, that is a thing of the 19th, early 20th century, not now. Anyway, so ये पहला नक्शा हिंदुस्तान का बना. But you cannot recognize anything about India in this because इस नक्शे में कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जिसकी टेरिटरी आज वही है जो 1947 में थी. जो इसमें पंजाब दिखाया गया है उसके अंदर आज पंजाब भी है, हरियाणा भी है, हिमाचल भी है, चंडीगढ़ भी है. और पाकिस्तान वाली साइड में उसमें इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, रावलपिंडी कैपिटल टेरिटरी और उनका पंजाब है. और ये जो पंजाब है ये 1911 से पहले तक दिस पंजाब वॉज अ पार्ट ऑफ द लार्जर NW, मतलब जो ये प्रोविंस थी पंजाब, दिल्ली वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस पंजाब टिल 1911. So you can imagine how big Punjab would have been. And now Punjab is a very short, and yet when you come to Rudrapur, you find Punjab here. Rudrapur, when you enter Rudrapur, you feel that you could have been in Kapurthala, you could have been in Jalandhar, you could have been anywhere, right? So this massive change that happens, this can happen only in our country, that you have an elected MLA, you will have an elected MP, most likely a minister, even a chief minister at some point of time. So this sort of a thing is there. So ये आप देखिए पहला नक्शा है. इसके बाद we'll move on to the second map of India. दूसरी बार क्या हुआ, अब ये नक्शा जो है भारत का, now this becomes slightly more recognizable because इस समय तक जो हमारी 562 रियासतें थी उनको हमने अमेलगमेट किया देश में. उसमें सरदार पटेल का और VP मेनन का बड़ा भारी रोल है. एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ. You see, the Britishers wanted India to be divided into Hindustan and Pakistan. But Sardar Patel, VP Menon actually, the bureaucrat, VP Menon, he said no, we will not make it Hindustan and Pakistan, we will make it India and Pakistan. Now you know that when a large firm, अगर एक बड़ी कंपनी है, उसके दो हिस्से हो जाएं. Let us say Tata Sons breaks into Shapoorji, Palanji and ABC. It is one thing. But if Tata Sons is Tata Sons and then there is a breakaway part, so the main part remains the main part and the breakaway part becomes the breakaway part. So we decided that we shall continue to call ourselves India and inherit that India and let Pakistan be a breakaway part of India. Now there is a very important distinction between this. Please understand as students of law. One is a breakup and one is breakaway. And this difference between breakup and breakaway is a very important distinction. As students of law, you will realize the significance of a linguistic term. In law, every comma, full stop, capital, small letter, everything is very, very important. एक comma से पूरा sentence बदल सकता है, right? Or this is what we have to understand. So what did we do? We said, okay, you have your Pakistan, but we are not going to become Hindustan, because if we had become Hindustan, then all the treaties that have been signed before would not be, we will not be in automatic succession to them. Then there will be two successors. Agar India becomes Hindustan and Pakistan, then India no longer exists and India has two successor agencies. But if there is a breakaway part, then you negotiate on your own. But I am already there. So that was a one very important aspect. बहुत लोग जो कई बार ये सवाल करते हैं कि हम भारत क्यों नहीं नाम रख दिया, हमने अपना नाम हिंदुस्तान क्यों नहीं रखा. So they have to understand the legal, political and international implications of choosing your name, right? इस पर बड़ी debate हुई है इस पर Constituent Assembly में, and these all things are there. So by this time you find that ये जो हमने इंडिया को फिर पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D स्टेट्स में 3-4 स्टेट्स में हमने डिवाइड किया. आई एम श्योर ये आपके फर्स्ट ईयर सिलेबस में भी होगा, फर्स्ट सेकंड ईयर. सो इन अ वे यू आर आल्सो रिवाइजिंग योर सिलेबस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड तक. इसके बाद हमारा ये पहली बार हिंदी में नक्शा बनता है 1952 में. लेकिन जब हमारा नक्शा बनता है तो इससे साउथ में बहुत आक्रोश आता है. रिमेंबर दैट द लैंग्वेज कॉन्ट्रोवर्सी इन दिस कंट्री हैज़ बीन अ मेजर कॉन्ट्रोवर्सी. और सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश जिसने इस लैंग्वेज कंट्रोवर्सी को काफ़ी हद तक हमने सॉर्ट आउट किया है. हमारा जो करेंसी नोट है उस पर 17 भाषाओं में
500 रुपये या 100 रुपये या 200 रुपये लिखा रहता है। दुनिया के किसी देश की करेंसी ऐसी नहीं होगी जिसमें 17 भाषाओं में उसका एक्सप्रेशन दिया गया। और हमारे 8th शेड्यूल में तो जैसा आप जानते हैं 22 भाषाएं हैं, और हर भाषा को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर दैट हिंदी डज नॉट हैव अ प्रिविलेज्ड पोजीशन ओवर एनी अदर लैंग्वेज। हिंदी का स्टेटस, सिंधी के स्टेटस, पंजाबी के स्टेटस, उर्दू के स्टेटस, मराठी के स्टेटस के अनुकूल है। Yes, Hindi is the official language and English is the associate official language of the country. But when it comes to national languages, every national language, whether it is Manipuri, which is spoken by a very small section of people, or Marathi, which is spoken by much larger numbers of people, or Bangla or Malayalam, the status is equivalent, and all of them are UPSC languages in the sense that you can appear in the UPSC exam with any one of these languages. But anyway, now I'm talking about this map. इस नक्शे में एक चीज़ जो बड़ी मज़ेदार है वो ये है कि पहली बार चीन शब्द का जो है हमारे नक्शे पे आता है, ऑन टॉप पे, सबसे ऊपर। इधर तिब्बत है, उसके ऊपर चीन है। इससे पहले तक हम चीन को रिकग्नाइज नहीं करते थे। जो नक्शा होता है एक देश का, वो ना केवल आपको अपने बारे में बताता है, लेकिन वो आपको आपकी परसेप्शन नेबरहुड के बारे में बताता है। तो इससे क्या हुआ कि हमने चाइना को रिकग्नाइज करना शुरू कर दिया, विच वॉज अ प्रॉब्लम फॉर अस मच लेटर इट बिकेम अ प्रॉब्लम फॉर अस। खैर, ये नक्शा क्योंकि साउथ में इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो इसको दोबारा से वी डिसाइडेड टू प्रिंट दिस ऑल ओवर अगेन। नेक्स्ट प्लीज। अब इस समय क्या होता है कि 1952 में एक्चुअली पहली हंगर स्ट्राइक देश में होती है, जब स्वामी सीताराम, क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मद्रास स्टेट जो थी, इसके अंदर 2 भाषाएं थी, तमिल और तेलुगु। और सी राजगोपालाचारी जब सीएम थे वहाँ के, तो ही वांटेड टू डाइवर्ट द वाटर्स फ्रॉम द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज टू द तमिल स्पीकिंग एरियाज। अब लेट्स रिमेंबर कि जब इंडस वाटर ट्रीटीज़ का था, रोज़ ही सुन रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले पंजाब हरियाणा का भी आपने सुना कि जब हरियाणा के सीएम ने कहा कि थोड़ा पानी और दे दीजिए, तो मान साहब ने कहा कि आप 103% पानी ऑलरेडी ले चुके हैं और अब आपको पानी लेने का कोई गुंजाइश नहीं है। अब तो हालांकि दोनों गवर्नमेंट्स फ्रेंडली हैं, हरियाणा और दिल्ली, लेकिन इतना इजी नहीं है हरियाणा के लिए पानी छोड़ना, बिकॉज अगर वो छोड़ेंगे तो हरियाणा के लोग ही कहेंगे, मतलब हरियाणा के ऑपोजिशन, क्यों आप दिल्ली को क्यों कर रहे हो, यू नो। सो इट्स I mean, the whole logic of the Terry Dam was also to provide water to Delhi. In fact, not H.N. Bahuguna, but Sundarlal Bahuguna जी का यही प्रोटेस्ट रहा कि आप ये पूरे का पूरा टेरी डैम जो बना रहे हो, इस पूरे टेरी डैम से उत्तराखंड को तो जो बेनिफिट होगा, लेकिन the more benefits of this will go to the people of Delhi. So this is a larger issue always. तो जब उन्होंने ये तेलुगु स्पीकिंग एरिया से उन्होंने तमिल एरियाज़ में रिवर वाटर को डाइवर्ट करने की कोशिश की, तो तमिल एरियाज़ में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, एंड दे सेड वी डू नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ द मद्रास स्टेट। इंसिडेंटली कांग्रेस ने, और जब मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द कांग्रेस विच इज़ द कांग्रेस ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, एंड द कांग्रेस ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट was a platform in which everybody was there. Muhammad Ali Jinnah was a part of that Congress, M.M. Malviya was a part of that Congress, M.N. Roy was a part of that Congress, Acharya Narendra Dev, Acharya Kriplani, सुचेता कृपलानी, विनोबा भावे, मतलब कांग्रेस में एक पूरा जिसको कहा जा सकता है, it was a celebration of India. Every type of person was a part of the Congress. It was not a political party, it was a party. There's a difference between a party which is fighting for freedom movement and a party which is fighting for elections. These are two different things, two very different things. When you are fighting for elections, you are looking for power. And when you are fighting for freedom, then also you are looking for power, but it is not power in the narrow sense, it is power in the broad sense. So there is a fundamental difference between the two. So in any case, ये हमारा, तो तब जो हमारा पहली बार जो है मद्रास स्टेट में से आंध्रा स्टेट निकल के आता है 1953 में। लेकिन जब ये आंध्रा स्टेट बनता है 1953 में, तो उससे इस बात का भी एक रिकग्निशन मिलती है कि पूरे देश को हमें लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइज करना हो। और देखिए, जो हमारे 4 लीडर्स थे फ्रीडम मूवमेंट के, गांधी, नेहरू, पटेल, अंबेडकर, इन चारों के हर चीज़ पे लगभग अलग अलग विचार थे। आई मीन दे कुड नॉट एग्री ऑन मैनी थिंग्स। I mean, they were all together in the Congress,
but they had very different views on how the country has to be run, on what should be the leadership pattern, because for Mahatma Gandhi, Panchayati Raj was the most and the very important thing. He felt कि सारी गवर्नेंस जो है वो पंचायतों के हाथ में छोड़ दी जाए. अम्बेडकर ऑन दी अदर हैंड फेल्ट कि अगर पंचायतों को पूरा ही लोकल प्रतिनिधियों के पास छोड़ दिया जाए तो इतनी डिस्पैरिटी है हमारे देश में कि ठाकुर तो उठने ही नहीं देगा किसी को. He will not allow the Dalit or the minority or the poor man to ever rise up. So he was totally opposed to Panchayati Raj. And there's nothing wrong about it. I mean, in a democracy, you're free to give your views. Sardar Patel was of the impression कि देखिए ठीक है, मतलब ICS ने अंग्रेज़ों के साथ काम किया, लेकिन ICS is a good machinery. It's a good system. So the system is good. अंग्रेज़ों ने उसको टास्क ए के लिए लगाया, आप उसको टास्क बी के लिए लगाइए. नेहरू वॉज इम्प्रेस्ड विद द सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टीज में कार्डर जो होता है, पार्टी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है. तो ही वॉज मोर इन फेवर ऑफ द कांग्रेस पार्टी डूइंग अ लॉट ऑफ रोल. ही वॉज नॉट वेरी इम्प्रेस्ड विद द ICS or the IAS. So these are four different people. But when it came to language issues, when it came to the issue of whether the country has to be reorganized on linguistic lines, all of them were together in their approach that the country must be reorganized on linguistic lines. तो 1953 में हमारा पहला देश का जो रीअरेंजमेंट हुआ, जब मद्रास एरिया के जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज थे वो निकल के आए. इट वॉज कॉल्ड आंध्रा स्टेट. तो आंध्रा स्टेट इज एक्चुअली द प्रिकर्सर टू आंध्र प्रदेश. उसके बाद में अब आंध्र प्रदेश बिकम आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. नेक्स्ट. तो इससे मैंने आपको बताया कि पहली बार आंध्रा स्टेट बना और इसके बाद में इस मैप तक फिर क्या हुआ कि स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई. तो स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने 4 जो हमारी दक्षिण भारतीय स्टेट्स थी उनको इस्टेब्लिश किया. और 1956 में ही, and Dipakshi, the origins of BSF actually go to 1956. You know what happened was that the demand for linguistic reorganization was happening in Punjab also. It was happening in Bengal also. It was happening in Bombay state, because Bombay state was then Gujarat and Maharashtra together were Bombay state. Assam में तो कई भाषाएं थी, बंगाल. तो स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने कहा कि जहाँ जहाँ हमारा बॉर्डर स्टेट है, जहाँ पाकिस्तान के साथ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्टेट पुलिस है, बिकॉज BSF के बनने से पहले जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी, द आर्मी नेवर कम्स आउट until there's a war. So the first line of defense used to be the state police. Therefore it was felt that in जो states हैं, जो bordering states हैं, इनमें हमें reorganize नहीं करना, right? It was only much later that, you know, in 1965 war when BSF was created, that all these smaller states also started happening. Next. अब ये जो है ये 1963 का मैप है, जिसमें पहली बार हमने ये नागालैंड स्टेट क्रिएट होता है. 1963 में नागालैंड क्रिएट होता है. और नागालैंड से इससे पहले क्या होता है कि पोर्चुगीज वाला जो छोटे छोटे एरियाज हैं, दे कम बैक टू इंडिया. आई मीन आई हैव लिटिल टाइम सो आई कैन नॉट गो इनटू टू मेनी डिटेल्स अबाउट दैट, बट वी विल टॉक अबाउट दैट एट सम इंटरेस्टिंग टाइम. तो धीरे धीरे हमारा स्टेट जो है, इसमें 1960 में गुजरात महाराष्ट्र बनता है, फिर 63 में नागालैंड बनता है. नागालैंड इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज नागालैंड जब बनता है उस समय ये स्टेट वायबल नहीं है और अब भी वायबल नहीं है. लेकिन तब इस बात का एहसास हुआ कि अगर कोई भी राज्य, अगर कोई भी छोटा कस्बा, अगर कोई भी मिलिटेंट ग्रुप, एथनिक ग्रुप अपनी फ्रीडम चाहता है एक स्टेट के रूप में और भारत के संविधान को मानने को तैयार है, तो हम उसके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं. हम सिर्फ भारत के संविधान से बाहर नेगोशिएशन नहीं कर सकते, लेकिन भारत के संविधान के अंतर्गत किसी भी बात पे चर्चा हो सकती है, किसी भी बात पे चर्चा हो सकती है. अगर कल को ये बात उठती है कि हमें हरिद्वार को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए, तो इट इज़ नॉट एन इलीगल डिमांड, इट इज़ नॉट एन एक्स्ट्रा लीगल डिमांड. यस, बात हो सकता है एक्सेप्ट करें, हो सकता है एक्सेप्ट ना करें, लेकिन इस पर चर्चा हो सकती है कि जो अर्बन एरियाज़ हैं उनको कुछ और राइट्स दे दिए जाए, उनको अपने उससे डीलिंग कर दिया जाए. Discussion can be held on these things. That's another aspect of history that we have to look. So this is what is happening. उसके बाद आगे चलिए और आगे चलिए. तो इस तरीके से जो हमारे देश के नक्शे जो हैं ये बन रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं. इस नक्शे में मैं आपको दिखाना चाह रहा था सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट की जो चेंजेस है वो कैसे होती है. सिक्किम का एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए देना चाहता हूँ कि democracy is demography and demography is destiny in many ways. सिक्किम लेप्चास का राज्य था
उसमें लेप्चा रहते थे। कुछ दिनों के बाद उसमें भूटान के जो लोग थे, भूटियास, उनका कब्जा हुआ। लेकिन दोनों दलाई लामा के फॉलोअर्स थे और दोनों अपने ओम मनी पद्मे हम और मोनेस्ट्रीज़ में रहते थे। और जब बहुत ज़्यादा मोनेस्ट्रीज़ में जब रहते हैं तो नेचुरली पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाती है, नेचुरली एग्रीकल्चर ग्रोथ भी कम हो जाती है। लेकिन मंक को खाना तो खाना है, राइस तो हर एक को चाहिए, आटा दाल चावल चीनी तो सबको चाहिए, चाहे आप भगवान में लीन हो, चाहे आप युद्ध कर रहे हो, तो यू विल नीड दिस। सो दे इन्वाइटेड पीपल फ्रॉम नेपाल to come and cultivate the lands around the monasteries in the year 1870. 1870 से लेकर 1947 तक नेपालीज़ की पॉपुलेशन बढ़ती गई, जबकि लेप्चास और भूटियास की पॉपुलेशन स्टेबल रही, बिकॉज दे वर नॉट हाउस होल्डर रिलीजन। There's a difference between a householder religion and a monastic religion. A householder religion would normally grow till a particular level, and after reaching a particular stage, फिर TFR ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाती है। लेकिन अब इसका जो मज़ेदार द्वंद्व ये हुआ कि 1947 में सिक्किम में नेपाली की पॉपुलेशन 60% हो गई थी, एंड दे वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, बिकॉज चोग्याल की रजीम में 60 मेंबर्स की असेंबली थी। तो चोग्याल ने कहा कि 20 नेपाली, 20 भूटिया, 20 लेप्चा। तो जब आप 60% लोगों को 20% रिप्रेजेंटेशन देंगे तो एक्चुअली डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हो गई। और यही मुद्दा आज डिलिमिटेशन में भी यही तो डिबेट है कि भाई क्या हमारी वोट का जो हक है, इज़ द राइट ऑफ अ वोट इक्वल और ऑलमोस्ट इक्वल, या क्या होता है। तो दिस इज़ हाउ सिक्किम बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया थ्रू 2 अमेंडमेंट्स, बिकॉज मिसेस गांधी वांट्स दैट सिक्किम को इंडिया में मिला लिया जाए, यू कैन नॉट डू इट, यू विल हैव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। So that is why the 35th and the 36th constitutional amendments were made. You must realize the significance and the importance of a constitution, and also about the importance of law. 3 बीघे, उसका नाम ही है 3 बीघा, उसको देना था हमने पाकिस्तान को, बाद में बांग्लादेश को, टू सेटल द ऑनक्लेव इशू। लेकिन नेहरू कुड नॉट डू इट, इंदिरा गांधी कुड नॉट डू इट, इट रिक्वायर्ड अ लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट इन 2015 to be able to settle that issue, right? So this is the power of law. Anyway, हम इससे फिर भटक जा रहे हैं। तो this is how Sikkim became a part of India and the entire North East, because एक बार जब नागालैंड बन गया तो नागालैंड के बनने में ही अरुणाचल का बनना भी था, उसी के अंदर मिजोरम का बनना भी था, उसी के अंदर मणिपुर का स्टेटहुड भी था, उसी के अंदर त्रिपुरा का स्टेटहुड भी था, बिकॉज वंस ऑल दीज थिंग्स आर डन। क्योंकि जब आपने एक कंसेशन एक बार दे दिया तो वही कंसेशन आपको अगली बार भी देना पड़ता है। तो मतलब अगर दीपाक्षी जी ने एक सेक्शन को कुछ कंसेशन दे दिया तो दूसरे सेक्शंस को भी देना पड़ेगा, इसलिए शी हैज़ टू बी वेरी केयरफुल, यू नो, इन गिविंग अ कंसेशन टू एनीवन, बिकॉज यू कैनॉट डिस्क्रिमिनेट, यू कैनॉट से कि दिस इज एप्लीकेबल फॉर BBLLB बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर BLLB, ये नहीं कर सकते। अगर आपने एक मैंडेटेड अटेंडेंस लगाई है कि इतनी करनी है तो उतनी करनी पड़ेगी। एंड एज द सिस्टम्स ग्रो, यू कैनॉट से कि ये रूल इधर चलेगा और इधर नहीं चलेगा। इफ़ यू हैव मेड अ रूल देन दैट रूल विल हैव टू बी फॉलोड एवरीवेयर। सो एनीवे, दिस इज हाउ द कंट्री गेट्स एंड इट लुक्स की सब ऑलमोस्ट ठीक। फिर 2000 में हमारे 3 और स्टेट्स बनते हैं, जिसमें उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई विल नॉट टॉक अबाउट छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, आई विल टॉक मोर अबाउट उत्तराखंड। लेकिन एक चीज़ हो जाती है कि 2000 साल में जो हमारी दोनों नेशनल पार्टीज़ थी, दे आर बोथ कंफर्टेबल विद स्मॉल स्टेट्स। इससे पहले तक लार्ज पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द कंट्री वर नॉट कंफर्टेबल विद स्मॉल स्टेट्स। जब बॉम्बे बना है तो उस समय कांग्रेस, CPI, PSP और जनसंघ जो चारों इम्पॉर्टेंट पार्टीज थी। आज देखिए, आज CPI की इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन मिस्टर सिंह वुड रिमेंबर कि CPI अपने ज़माने में एक बड़ी पावरफुल पार्टी थी। उत्तराखंड के अंदर CPI वॉज अ वेरी पावरफुल पार्टी इन उत्तराखंड। PC जोशी जो पूरे देश के जनरल सेक्रेटरी थे हमारे कम्युनिस्ट पार्टी में, वन ऑफ लीडिंग कम्युनिस्ट लीडर्स ऑफ द कंट्री। MN रॉय वॉज सेटल्ड इन देहरादून, एंड हमारे एक मिस्टर नेगी थे जो MLA थे, वेरी पावरफुल। सो इट इज़ नॉट दैट द कम्युनिस्ट पार्टी आज इट्स लेफ्ट टू अ वेरी साइफर, बहुत छोटा उसका रह गया है। लेकिन अपने ज़माने, लेकिन ये सारी की सारी पार्टीज जो थी, कांग्रेस, CPI, PSP, जनसंघ,
they were all opposed to the breakup of Maharashtra. लेकिन popular support इतनी थी कि महाराष्ट्र बना because everybody defied the leadership of their overall thing and they said नहीं हमें बनाना। देखिए उत्तराखंड का जो नाम, उत्तराखंड का नाम जनसंघ या बीजेपी को पसंद नहीं था। दे वांटेड द नेम उत्तरांचल, क्योंकि जनसंघ और बीजेपी का जो अपना विचार था अब उन्होंने चेंज कर दिया है। वो ये था कि हम अपने देश में खंड नहीं होंगे, आंचल हो सकते हैं देश में। इसीलिए झारखंड का पहला नाम वनांचल रखा गया था, उत्तराखंड का पहला नाम उत्तरांचल रखा गया था। लेकिन उत्तराखंड की पूरी मूवमेंट जो थी वो उत्तराखंड से थी। लेकिन एक और मज़ेदार चीज़ ये कि जैसे ही ये डिमांड फुलफिल होती है तो जो लोग इस डिमांड के फेवर में होते हैं उनकी अस्तित्व खत्म हो जाता है। बिकॉज द डिमांड इज अ डिमांड टिल सच टाइम एज इट इज एक्सेप्टेड। आप जिद कर रहे हैं अपने माँ बाप से कि ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, जिस दिन मिल गया उस दिन वो डिमांड खत्म, तो उस दिन फिर ट्रूस हो जाती है। सो उत्तराखंड क्रांति दल इज अ क्लासिक केस इन योर ओन आइज, ए पार्टी जिसने पूरी जद्दोजहद की, मार खाई, जेल गए, पिटाई खाई, और जब उत्तराखंड बन गया तो अब इट इज़ कांग्रेस बीजेपी और बीजेपी कांग्रेस। लेकिन ये इट इज़ गॉन इनटू द सेम रूटीन विच इज़ देयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, कि कभी ये कभी वो। लेकिन जो मेन झगड़ा, झगड़ा तो शब्द इज नॉट द राइट वर्ड, बट द मेन कॉन्टेस्ट टुडे इज ऑल्सो हियर ऑल्सो इज बिटवीन द कांग्रेस एंड द बीजेपी, विच इज द वे इट शुड बी। देयर इज नथिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। और अगर कहीं पे रीजनल पार्टी है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। Just because a state is being ruled by a regional party does not make that state less important or more important. Just because a state is ruled by a political party does not make it more important than the rest, because everything is, we are all working for a larger cause, and that larger cause is the cause of Bharat, the cause of India. अब देखिए उत्तराखंड में जो कहानी उत्तराखंड की है कि अंग्रेज़ जब आए थे यहाँ पे, और वाई अंग्रेज़, कोई भी इंपीरियल पावर, चाहे वो डच हो या फ्रेंच हो या कोई भी हो, या कहीं से भी जब कोई आता है तो वो आता है रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के, उसको उसमें अपने प्रॉफिट नज़र आते हैं। देखिए हर चीज़ में आप वही देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। हमारे यहाँ जो बांज के फॉरेस्ट थे जिनसे बहुत फ़ायदा होता है, उसमें बहुत सी एडवांटेजेस है, लेकिन वो देखने में शायद इतने सुंदर नहीं है जितने पाइन ट्रीज़ हैं। So pine is certainly more beautiful. I mean, certainly if you take a photographic view, you take a Chirka forest, if you look at a pine forest, it's certainly more beautiful. I mean, certainly more aesthetic to the eye than an oak forest. But an oak forest has its value. Sal forest has its own value. And pine also has its value, so we cannot say that it has zero value. But every person has a different perspective. So, जहाँ पे हम natural resource देख रहे थे, वहाँ पे अंग्रेज़ों को उसमें रेलवे के स्लीपर नज़र आए। एंड फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ इंडियन रेलवेज इज एक्चुअली द डिनोडेशन ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ उत्तराखंड। सारे स्लीपर, इतने स्लीपर जो बने, पहले तो स्लीपर होते थे, तो आपने भी देखे होंगे शायद। आजकल तो बच्चे कम ट्रैवल करते हैं ट्रेन में, या आजकल वो लोहे के आ गए, लेकिन हमारे ज़माने में तो आपने वो वुडन वाले स्लीपर देखे होंगे। तो वुड वॉज, आई मीन बिफोर स्टील became an important part of the construction industry, all construction was primarily wood, right? So wood was a very, very important element in the overall scenario, ship building से लेके आपकी बड़ी buildings तक, हर चीज़ के अंदर। और उसके अंदर उत्तराखंड से resource extraction जो हुआ वो बहुत ज़बरदस्त था। resource extraction का मतलब क्या है? laws बन गए। अच्छा, law क्या है? अगर हम बिल्कुल टेक्निकल सेंस में देखें तो जो अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई वो बिल्कुल लीगल थी। इट वाज लीगल इन द सेंस कि उनको थॉमस रो को जहांगीर ने परमिशन दी कि भाई आप अपना ये कर लीजिए, फैक्ट्री लगा लीजिए। और उस ईस्ट इंडिया कंपनी को उनके राजा ने भी परमिशन दी कि आप जाके यहाँ मोनोपोली कर लीजिए। तो फ्रॉम प्योरली लीगल सेंस, फ्रॉम अ प्योरली लीगलिस्टिक सेंस, देयर वाज नथिंग इलीगल अबाउट द ब्रिटिश रूल इन द कंट्री, बिकॉज दे वर फॉलोइंग अ सर्टेन थिंग। लेकिन उसके अंदर फिर समस्या ये आती है, और देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा अपना लीगल ब्रेन और लगाना पड़ेगा। अगर ये है तो फिर म्यूटनी कैसे हो सकती है? क्योंकि म्यूटनी तो तब होगी अगर आप अपने राजा के अगेंस्ट जाते हैं। उस समय नोशनल राजा हिंदुस्तान का बहादुर शाह जफर था, बिकॉज बहादुर शाह जफर के फरमान से ही तो ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी, सो इट कुड नॉट हैव बीन म्यूटनी।
So, many times the terms that we use in history, whether we use the word First War of Independence or we use the word mutiny, these are all loaded questions. जो भी हम शब्द यूज़ करते हैं, जो हम टर्म यूज़ करते हैं, एक होता है कॉमन भाषा की टर्म्स, एक होता है एक लीगल टर्मिनोलॉजी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ वाई इंसिडेंट वही होता है, इवेंट वही होता है, उसको डिस्क्राइब करने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं. जैसे वही डॉक्यूमेंट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, इन दो एक्ट्स को जिनके बेसिस पे हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उनको जब कंपाइल करके अंग्रेज़ों ने जब पब्लिकेशन छापी तो उसका नाम रखा ट्रांसफ़र ऑफ पावर. और जब हमने उसको छापा भारत सरकार ने, तो हमने शब्द दिया टुवर्ड्स फ्रीडम. नाउ द डॉक्यूमेंट्स आर द सेम, बट इफ यू से ट्रांसफ़र ऑफ पावर, it also legitimizes the power which the Britishers already had, because you can only transfer something which is yours. I cannot give something which is not mine. I can only give to you what is legitimately mine. If it is not mine, how can I give something to you? Right? So these are all nuances. Or yet popular imagination में 47 in Punjab is called Batwara, because the lived reality of people was not freedom. The lived reality of people was tremendous violence. 10 lakh people dead. 2 crore people displaced, 2.5 lakh women molested, raped. So that is the lived reality. The lived reality, the official reality from the eyes of India, the official reality from the point of view of the British is very different. So as students of law, as students of history, we have to understand these things. Anyway, वो उत्तराखंड से बात शुरू हुई थी, तो ये जब रिसोर्स एक्सट्रैक्शन बहुत बढ़ गया, तो सबसे पहले यहाँ कुमाऊँ में प्रोटेस्ट शुरू हुई थी 1920s में, जो कि ये जो हो रहा है हमारे साथ, ये गलत हो रहा है. उसके बाद में लॉज बने एंड द रिजर्व फॉरेस्ट को थोड़ा सा छोड़ा गया एंड द मूवमेंट स्टार्ट. जब आज़ादी मिली हमें, उसके बाद में ये गौरा देवी का जो प्रोटेस्ट मूवमेंट था, इट वाज नॉट एन ओवरनाइट मूवमेंट. उससे पहले चंडी प्रसाद भट्ट जी का दशोली ग्राम स्वराज मंडल था, जिसने बहुत दिनों तक उसमें गांधीयन मेथड से, स्वराज्य के मेथड से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बहुत काम कर रहे थे. तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से काम करते करते दे वांटेड अ फ्यू ट्रीज़ फॉर देयर, अपने वो जो गांव में जो हल बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए, दे वांटेड अ फ्यू ट्रीज़. लेकिन रिमेंबर कि उस समय फॉरेस्ट कॉरपोरेशन जो थी वो सब लखनऊ में थी. सो दे फेल्ट कि दे हैड ऑलरेडी गिवन द कॉन्ट्रैक्ट टू द साइमंड स्पोर्ट्स कंपनी. तो जो ट्रीज़ इनके लिए मार्क थे, दे वर टोल्ड दैट यू कैन नॉट गेट दीज ट्रीज. और वहाँ के लोगों ने तब सोचा कि इनको बुला लेते हैं चमोली में मीटिंग के लिए, और पीछे से जाके हम पेड़ काट देंगे, महिलाएं क्या करेंगे. सो दैट वाज द स्पर ऑफ द मोमेंट कि एक एजिटेशन का माहौल तो था. देखिए, कोई चीज़ सडनली नहीं होती. एवरीथिंग देर आर थिंग्स विच आर लीडिंग. अगर हम ये माने, अगर हम ये कहें कि 1930-31 में महात्मा गांधी उठे, उन्होंने कहा चलो सॉल्ट सत्याग्रह कर देते हैं, वुडंट हैव हैपेंड. व्हाई डिड सॉल्ट सत्याग्रह हैपन? सॉल्ट सत्याग्रह हैपेंड बिकॉज फ्रॉम 1915 तैयारी चल रही है. 1915 से कांग्रेस की तैयारी चल रही है, कांग्रेस के अधिवेशन चल रहे हैं. कांग्रेस अपने आप में 1885 में एक प्रबल ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, और 1900 से लेके तो वो एक एजिटेशन मोड में आ जाती है. 1905 में जब कर्जन बंगाल का विभाजन करता है, तो कांग्रेस इतने ज़बरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट करती है कि कर्जन हैज़ टू टेक बैक, नॉट कर्जन. उसके बाद में 1911 में दे हैव टू टेक बैक द ऑर्डर्स एंड बंगाल अगेन बिकम्स वन. दैट इज़ द टाइम व्हेन दे डिसाइड कि अब बंगाल से मुश्किल हो गया, तो चलो आओ दिल्ली आ जाते हैं. लिटिल रियलाइजिंग दैट दिल्ली में भी वही सेंटिमेंट होगा. जब अंग्रेज़ों ने, और दिस इज़ वन ऑफ दोज इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट हिस्ट्री, जब अंग्रेज़ों ने दिल्ली में कैपिटल बनाया 1911 में, और 1927 तक ये नई बिल्डिंग्स बन गई थी राष्ट्रपति, उन्होंने सोचा होगा कि हम अगले 400-500 साल तक तो यहीं रहेंगे. 20 साल के लिए कोई कैपिटल बनाता है? नोबडी मेक्स अ कैपिटल फॉर 20 years. आई मीन इफ दे हैड इवन द स्लाइटेस्ट इंक्लिंग कि उनको छोड़ के जाना पड़ेगा, तो कलकत्ता ही ठीक था. मतलब व्हाई डू ऑल दिस? बिकॉज द टाइड ऑफ हिस्ट्री, द टाइड ऑफ टेक्नोलॉजी, द टाइड ऑफ हिस्ट्री, द टाइड ऑफ एस्पिरेशन कैनॉट बी स्टॉप्ड एंड इट कैनॉट बी प्रिडिक्टेड. एनीवे, गोइंग बैक टू उत्तराखंड, एक चीज़ जो हम लोग रियलाइज़ नहीं करते, वो रियलाइज़ नहीं करते कि ये जो चिपको मूवमेंट जो थी, इसको पॉलिटिकल लीडरशिप से अच्छी सपोर्ट मिली, बिकॉज 3 बहुत प्रोमिनेंट चीफ मिनिस्टर्स उत्तराखंड से ही थे. गोविंद बल्लभ पंत, जो पहले मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, और बाद में भारत के सबसे पावरफुल होम मिनिस्टर रहे.
After Nehru, he was the most important person. In fact, he could even tell Nehru कि ये करना है या नहीं करना है. Nehru could not have overruled गोविंद बल्लभ पंत. जो IAS अकेडमी जो आज मसूरी में है वो भी उन्हीं की देन है, क्योंकि मसूरी और देहरादून एक्चुअली एंग्लो इंडियन टाउन्स थे, जो एंग्लो इंडियन सिटीज़. और जब 47 के बाद शहर बिल्कुल खाली हो गया था, बिकॉज ऑल द थिंग्स वेंट, सो तब मसूरी के ट्रेडर्स ने जाके रिप्रेजेंटेटिव भी कुछ कीजिए, तो मसूरी तो ख़त्म हो रहा, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है IAS अकेडमी है, उसको यहाँ ले आते हैं. एंड IAS अकेडमी के आने से मसूरी की ट्रांसफॉर्मेशन हुई. लेकिन आई टेल यू कि 85 तक, जब तक मारुति कार नहीं बनी थी, मारुति कार ने हमारे देश में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ले आया. बिकॉज मारुति कार जब तक नहीं आई थी तब तक लोगों के पास कारवार नहीं होती थी. मतलब एक आध शहर में 2 4 5 एम्बेसडर, एक आध वो BSF में भी जीप्स होती थी, मतलब सिर्फ IG को एक एम्बेसडर कार मिलती थी, उसके नीचे सब लोगों के पास वो विलीज की जीप होती थी, पीछे से खुली रहती थी, आपने देखा होगा. तो मारुति कार ने ट्रांसफॉर्मेशन की. लेकिन क्योंकि जब हम लोग 85 में मसूरी गए तो दुकानदार हमको वेलकम करते थे ताली बजा के कि आइए कुछ बिजनेस होगा. आजकल तो क्यों इतना बिजनेस है, दे डोंट रियली बॉदर अबाउट द एकेडमी. बट एंड लेट मी टेल यू, देयर वाज नो नीड फॉर एनी क्रेडिट कार्ड, बिकॉज यू कुड जस्ट गो टू दैट मसूरी सिटी एंड से दैट यू आर फ्रॉम द एकेडमी, यू विल गेट योर क्रेडिट, जो भी था. और दूसरी तरीके वो सब आ जाते थे, पैसे लेने के लिए भी आ जाते थे. दैट वाज दी. बट एनीवे द इम्पॉर्टेंट पॉइंट वाज दैट जब तक HN बहुगुणा, गोविंद बल्लभ पंत, ND तिवारी, जब तक ये लोग चीफ मिनिस्टर रहे उत्तराखंड के, तो ये मूवमेंट ने तूल इसलिए नहीं पकड़ी क्योंकि उनको लगा नहीं कि ये किसी और से बात कर रहे हैं. वो लग रहा था कि अपनों से ही बात हो रही. जो रोष, एक रोष है आपको अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने भाई के साथ, वो रोष है, वो रोष रहेगा ही, वो तो हर रोज़ होगा. लेकिन वो रोष एक उस तरीके के उन्माद में नहीं फैलता. यू हैव अ ग्रीवेंस, यू टेक दैट ग्रीवेंस, बिकॉज व्हेनेवर दे वुड गो टू ND तिवारी और टू दिस, से ओके सॉर्ट ऑफ डन. जब ये रेजिम चेंज हुई और राम नरेश बने यूपी के चीफ मिनिस्टर, तब उन्होंने गोलियां चलवाई यहाँ पे इधर कुमाऊं एरिया में. दैट इज़ व्हेन द उत्तराखंड, व्हेन द चिपको मूवमेंट बिकेम व्हाट इट इज. सो चिपको मूवमेंट, हर मूवमेंट के पीछे दो पहलू होते हैं. एक होता है मूवमेंट की मोबिलाइजेशन क्या है, और दूसरा होता है कि उस मोबिलाइजेशन का रिस्पॉन्स क्या है. हाउ डज द स्टेट रिस्पॉन्ड. अब आप लोगों की कुछ डिमांड है, यू हैव सम इश्यूज. आप आए, दीपाक्षी मैम से मिले, दीपाक्षी मैम ने थोड़ा सा सुना, बात की, आपको चाय पिलाई, कॉफी पिलाई, तो चलो ठीक है, इतनी मान लेते, इतनी नहीं मानते, तो मैटर इज ओवर. द प्रॉब्लम हैपन्स व्हेन यू हैव अ डिमांड एंड व्हेन दैट डिमांड इज नॉट एक्सेप्टेड, rather than accept the demand, something is more is imposed on you. मतलब आप आए कि हमारा 80% से 75 कर दीजिए, और मैडम ने कहा नहीं, अब 90% अटेंडेंस कर देते हैं. Then there is a difference, you know, then there is a different situation altogether. इसमें तो क्या बैलेंस हो गया, बहुत हो गया. And the real reason for the Uttarakhand movement was actually the OBC reservation order. जब OBC reservation order आया कि 27% जो सीट्स है एजुकेशन और जॉब्स में, दैट विल बी मेंट फॉर द OBCs. ना उत्तराखंड की जो कॉन्स्टिट्यूएंट पॉपुलेशन है, दे सेड ओनली 3% OBCs. उत्तराखंड इज प्राइमरली ठाकुर, ब्राह्मण, शेड्यूल कास्ट, राइट, एंड शेड्यूल ट्राइब्स. सम शेड्यूल ट्राइब्स, स्मॉल स्पैटरिंग ऑफ मुस्लिम. तो दिस इज द पैटर्न ऑफ उत्तराखंड. तो पूरे उत्तराखंड में सिर्फ 3% OBCs थे. उस समय मुलायम सिंह के पास दो ऑप्शन. अगर वो समझदार या मतलब थोड़े और विजनरी होते तो वो कहते कि ये जो रूल है ये इन डिस्ट्रिक्ट्स पे एप्लीकेबल नहीं है. द प्रॉब्लम वुड हैव गॉन. आई डोंट थिंक उत्तराखंड वुड एवर हैव बीन मेड. अगर ये हो जाता कि भाई ये जो 27% रिजर्वेशन जो है ये टेरी में नहीं होगी, पौड़ी में नहीं होगी, चमोली में नहीं होगी. अब चमोली में इमेजिन करिए, चमोली में पुलिस कांस्टेबल्स की रिक्रूटमेंट है, 200 पोस्ट आती है, OBC वहाँ है ही कोई नहीं, या जो भी होंगे उनको मिल जाएगा. जहाँ की वहाँ पे जो पॉपुलेशन है ठाकुर, ब्राह्मण, SC की, उनको चांस ही नहीं मिलेगा, तो नेचुरली रिजेंटमेंट आएगी. मुलायम सिंह वाज लुकिंग एट द लार्जर यूपी कॉन्स्टिट्यूंसी, बिकॉज ही फेल्ट कि अगर मुझे तो यूपी चाहिए, यूपी में मैं क्यों डाइल्यूट करूँ, मुझे इन 17-20 MLA से क्या फ़र्क पड़ता है. 22 MLA थे तब उस समय. तो मतलब इतने बड़े हाउस में, 400 प्लस के हाउस में, हाउ डज इट मैटर, हाउ डज इट मैटर, यू नो. दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. आई वॉज SDO इन कालिम्पोंग, अब तो कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट हो गया. बंगाल में देयर आर 294 MLAs. दार्जिलिंग में सिर्फ 3 MLA हैं. तो होता रहे दार्जिलिंग में. इफ़ यू आर अनपॉपुलर इन दार्जिलिंग, हाउ डज इट मैटर टू ममता बनर्जी. मैटर. 3 सीट हैं, 3 सीट हैं, 294 का हाउस है. अब हार भी जाओ, ना भी इलेक्शन लड़ो, मतलब आपकी जमानत जब्त हो जाए, हाउ डज इट मैटर टू यू. इनफैक्ट
This is where politics takes a very interesting turn. पूरे बंगाल में ये जो तीस्ता नदी, मतलब जो ये मुर्शिदाबाद के ऊपर हमारे 41 एमएलए हैं और उसके नीचे बाकी के हैं। तो अगर कोई इंटेलिजेंट पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे ममता बनर्जी इंटेलिजेंट है, यू कैन डिसएग्री विद हर, you can fight with her politics, you can completely disagree with her, but as far as politics is concerned, she understands that the majority population, the most powerful votes are in Calcutta and the surrounding 4 districts. अगर कैलकाटा और उसके सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स में आपको 180 सीटें मिल रही हैं, तो टू हेल्प विद द रेस्ट, हाउ डज इट मैटर? जो साउथ की जो आज प्रॉब्लम जो है डिलिमिटेशन के साथ, तो यही तो है। वो कह रहे हैं कि साहब हमारी संख्या इतनी कम हो जाएगी कि अगर ये पूरा हिंदी हार्टलैंड कुछ डिसाइड करता है तो हमारी वोटों का मतलब ही नहीं रहेगा। मतलब आप भी देखिए, वैसे फैक्ट रिमेन्स कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स और पर्सनैलिटीज, बट द सीएम ऑफ यूपी इज द सीएम ऑफ यूपी, बिकॉज he's got 80 MPs. Who is the CM of Nagaland? Who is the CM of Sikkim? Who is the CM of Arunachal? I can challenge you, you will not be able to name those chief ministers, because they don't matter. They don't count in the politics. So anyway, that was another reason. That is how, because of this reservation order, Uttarakhand came into being. So friends, उसके बाद में जो लास्ट जो मेजर चेंज होता है हमारे देश के नक्शे में 2019 में होता है, जब हम जम्मू कश्मीर एज अ प्रोविंस को रीऑर्गेनाइज करते हैं इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। एक आपको और मज़ेदार बात बता दें है कि 1947 में एक डिमांड थी लद्दाख की, दैट दे शुड बी मर्ज्ड विद लाहौल स्पीति एंड टेरी एंड पौड़ी गढ़वाल टू मेक वन कॉमन हिल स्टेट। वो नहीं हुआ, दैट्स अनदर मैटर, बट दैट वाज वन ऑफ द डिमांड। सो कई बार हिस्ट्री और इतिहास ऐसे ट्विस्ट लेता है, ऐसे टर्न्स लेता है, जिनके बारे में हमें कई बार अंदाज़ा नहीं होता, बट हिस्ट्री इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, इट्स अ फैसिनेटिंग स्टडी एंड आई होप यू विल एंजॉय डूइंग दिस। आई एम वेरी ग्लैड मेरे साथ सचिन है, सचिन ने मेरी किताब का हिंदी अनुवाद किया है, हम भारत के राज्यों के लोग। सचिन आप खड़े हो जाओ ज़रा, कुछ और ऐड करना चाहोगे तो आ जाओ, हाँ पक्का, ठीक। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर दीपाक्षी जोशी, Dr. Bhesh, Mr. S.P. Singh. We are open for question and answers. Have taken longer than what you had allotted to me. Thank you. Thank you so much, sir, for your enlightening and inspiring session.